Hello student, good morning. We are going to have a session on gate before gate, wherein I am going to discuss important questions, expected questions rather, from the subject of operating systems and algorithms. ठीक है, पहले operating system ले लेंगे, फिर उसके बाद algorithms लेंगे. चलिए start करेंगे direct. So first we will start with operating system. Let us take this question. जो questions मैंने select किया है, perhaps is based on anticipation that maybe based on this model you can expect. Like you take the first question, this is from virtual memory, or you can say memory management. Okay? Consider a system using paging hardware with a translation leukocyte buffer to reduce effective memory access time. Paging technique का है. Assume that the entire page table, ये बहुत important है, entire page table and all the pages are in the physical memory. मतलब ये है कि यहाँ पर पेज टेबल भी मेमोरी में है और ऑल पेजेस आर इन मेमोरी, मतलब पेज फॉल्ट की कोई गुंजाइश नहीं है. इट टेक्स 30 मिलीसेकेंड्स टू सर्च द टीएलबी. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टीएलबी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सर्चिंग टाइम और एक्सेस टाइम, यू कैन से 30 मिलीसेकेंड्स. ठीक है, एंड 110 मिलीसेकेंड टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी. मेन मेमोरी एक्सेस टाइम मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू 110 milliseconds. ठीक है, so TLB access time generally we denote by symbol C and memory access time will denote by mm. If the TLB hit ratio is 0.6, TLB hit ratio, let us call it as X, is nothing but 0.6, then what is effective memory access time? Very direct question. मेरा मकसद यहाँ पर ये था एक क्वेश्चन देने के लिए कि ये मॉडल के ऊपर कोई भी एक वेरिएशन आ सकता है, दैट इज व्हाट इज द एंटिसिपेशन. वो 1 लेवल पेजिंग के साथ आ सकता है, 2 लेवल पेजिंग के साथ आ सकता है, ठीक है, पेज फॉल्ट के साथ भी आ सकता है. ठीक है, ये मॉडल के ऊपर आप अच्छा प्रिपेयर कर लें, ये मेरा मकसद है. तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का इक्वेशन ये है विथ टीएलबी हिट रेशियो. सो टाइम इज C प्लस M. आप कैशे एक्सेस करेंगे, फिर मेमोरी एक्सेस टाइम करेंगे, फिर टीएलबी मिस रेशियो 1 माइनस एक्स इंटू C प्लस 2M. क्यों होगा? टीएलबी में मिस होगा तो टीएलबी सर्चिंग टाइम होगा, फिर उसके बाद पेज टेबल एक्सेस होगा, फिर फाइनल मेमोरी एक्सेस होगा फॉर योर ऑपरेंड या फिर इंस्ट्रक्शन एक्सेस, कंटेंट एक्सेस के लिए. ठीक, ऑल वैल्यूज आर गिवन, यू हैव टू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हियर. सो देयरफॉर दिस इज 0.6 into C plus M. C is nothing but 30 milliseconds. 30 plus 110. ठीक है, plus 1 minus x becomes 0.4 into this become 30 plus 220. आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए. So this become 0.6 into 140 plus 0.4 into 250. Is it not? So therefore this is 6 into 14 plus 25. This become 25 into 400. पूरा मिलीसेकंड में है ये, पूरे मिलीसेकंड्स. ओके, 84 plus 100, directly this become 184 milliseconds. That's it. That is a numerical answer type question. The answer for this is 184 milliseconds. That's all. This is the answer for it. ठीक है, very simple. Next. Suppose the following disk request. अब मैं next question ले रहा हूँ disk scheduling पर. ये anticipate करेंगे कि शायद एक question आए, क्योंकि काफ़ी time हो गया है. We have not got a question from disk scheduling, so we are in anticipation that perhaps शायद हमें disk scheduling के ऊपर कोई question मिले. So therefore I am taking a question based on that model. देखेंगे. The following disk request sequence for a disk with 100 tracks. These are the requests. ठीक है. The initial position of the read-write head is on the track number 50. Find the number of time the read-write head changes its direction. देखिए आप. Before servicing the request 20 using SSTF. Shortest seek time first है. Request दिए गए हैं. Initial position of read-write head है. तो ये पूछा जा रहा है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगेन, कि कितने बार अपना रीड राइट हेड डायरेक्शन चेंज करेगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टाइमलाइन बना लेंगे. ठीक है, तो लेट्स इमेजिन दैट दिस इज आवर टाइमलाइन. सॉरी, थोड़ा नीचे ले लेंगे. ठीक है, so this is our disk with 100 tracks. So 100 tracks sequentially you can mark 0 to 99. Let's say this halfway mark 50, जहां पर read write head का इनिशियल पोजीशन है. तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरे रिक्वेस्ट मार्क कर लेंगे एक के बाद एक. 45, let us imagine this 45.
देन 20, तो इसका हाफ ले लेंगे नियरली, सो 20 इज हियर, फिर 90, परहैप्स 99 है तो 90 में बी हियर, देन आई हैव 5 में बी हियर, देन आई हैव 50 तो है, 60 यहां पर होगा 60, फिर 80, परहैप्स 80 इज नियरर टू 90, फिर देन आई हैव 75 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यहां पर हम देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 8 रिक्वेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिक्वेस्ट, करेक्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में वी फ्रॉम द करंट पोजीशन वी विल गो टू दैट ट्रैक विच इज नियरेस्ट, तो मतलब फ्रॉम 50 विच इज नियरेस्ट 50 ओनली, सो विल सैटिस्फाई 50 सैटिस्फाई होगा। फिर उसके बाद सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा, देखिए 50 to 60 is 10, 50 to 45, तो मतलब 45 पे आएगा, राइट। 45 से कहां जाएगा, देखिए आप 45 to 20 is 25 और 45 to 60 is 15, सो नेचुरली 60 is nearer, तो यहां पे आएगा। मतलब ये फर्स्ट टाइम रीड राइट हेड अपना डायरेक्शन चेंज किया, फर्स्ट टाइम, इज इट नॉट, यहां पर चेंज किया। अब 60 से कहां जाएगा, देखिए आप नेचुरली 60 to 20 is 40 है और 60 to 75 15 है, तो 75 पे सर्व करेगा रिक्वेस्ट, ठीक है, 75 पे सर्व करेगा। 75 से नेचुरली 80 पे जाएगा, चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन, प्लीज ऑब्जर्व। 80 से कहां जाएगा, 90 पे जाएगा, चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। 90 के बाद नेचुरली रिक्वेस्ट जो है 20 पे है, तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो 20 पे आएगा। यही हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, इन ऑर्डर टू सर्व द रिक्वेस्ट 20 कितने बार रीड राइट हेड अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम यहां चेंज किया, सेकेंड टाइम यहां पे चेंज हुआ, सो देयरफॉर इट हैज चेंज द डायरेक्शन 2 times, दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। पास क्वेश्चंस गेट में ऐसे आए हैं कि वेयर दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी टाइम द रीड राइट हेड हैज चेंज द डायरेक्शन, इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेचुरली बिकम 2, न्यूमेरिकल टाइप 2 times इट हैज चेंज द डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आप, ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग सेगमेंटेड पेजिंग आर्किटेक्चर फॉर वर्चुअल मेमोरी। हाँ, सेगमेंटेड पेजिंग पे भी काफी टाइम पहले क्वेश्चंस आए थे और यहां पर न्यूमेरिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि इफ एट ऑल वी एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन ऑन दिस यू शुड बी इन अ पोजीशन टू वर्क आउट, ठीक है। बोथ वर्चुअल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस कंटेन 256 किलोबाइट्स, ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। The virtual address space is divided into 8 non-overlapping equal size segments, ठीक है। Page tables are stored in the main memory and consist of 2 byte page table entry. Page table entry size 2 bytes है। What is the minimum page size in bytes so that page table for a segment, segment का जो page table है requires at most 1 page to store in it, right? तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे the virtual address space size, यहां पे लिख लेंगे हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस साइज इस कितना है बच्चों, 256 किलोबाइट्स। दिस इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल साइज सेगमेंट्स, तो मतलब इससे हम सेगमेंट की साइज डिटरमिन कर सकते हैं। सेगमेंट साइज बन जाएगी आपकी 256 किलोबाइट्स डिवाइडेड बाय 8, कितना हो गया ये, दिस इज 2 power 18 डिवाइडेड बाय 2 power 3 बिकम 2 power 15, मतलब 32 किलोबाइट्स का आपका सेगमेंट हो गया। तो अगर हम डायग्राम उतार लेंगे यहां पर, अगर हम डायग्राम बना लेंगे सेगमेंट का, ठीक है, ये मान लीजिए आपका सेगमेंट है, सॉरी ये है आपका सेगमेंट, ये आपका सेगमेंट है। दिस सेगमेंट इज ऑफ साइज 32 KB। एज पर द गिवन कॉन्सेप्ट दिस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस, और ये पेज साइज जो है, पेज साइज P0, P1, P2, ये पेज साइज आपको डिटरमिन करनी है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट पेज साइज जो जनरली पावर ऑफ 2 रहता है, लेट अस अज्यूम इट इज 2 power x बाइट्स, तो मतलब ये पेज साइज है 2 power x बाइट्स, ये पेज साइज है 2 power x बाइट्स, इज इट नॉट, ठीक है। तो कितने पेजेस बन जाएंगे, तो इसके लिए ये पेजेस जब मेमोरी में स्टोर होंगे, टू एक्सेस दैट पेज, टू एक्सेस दैट पेजेस, टू एक्सेस दोस पेजेस, यू नीड ए पेज टेबल, इज इट नॉट, यू नीड ए पेज टेबल। ये है आपका पेज टेबल। So page table consists of number of entries. This is a page table of what? Page table of segment. Page table of segment. ठीक है, इसमें कितने एंट्रीज रहेंगे, नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए, नंबर ऑफ पेजेस यहां पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन सेगमेंट इज इक्वल टू सेगमेंट साइज 32 KB डिवाइडेड बाई पेज साइज। पेज साइज कितना है 2 power x, सो दिस इक्वल्स टू 2 power 15 minus x, 2 power 32 K, sorry 32 K is 2 power 15, 2 power 15 minus x number of pages,
मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे पेजेस में इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस, मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज यहां पर आपके बन गए 2 पावर 15 माइनस एक्स, और जो एंट्री की साइज दी गई है क्वेश्चन में वो है 2 बाइट्स। तो मतलब ये हुआ यहां पर मतलब ये हो गया, ऐसे लिखेंगे हम, पेज टेबल साइज इज इक्वल टू 2 पावर 15 माइनस एक्स नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीप्लाइड बाय एंट्री साइज 2 बाइट्स। तो ये बन जाएगा 2 पावर 16 माइनस एक्स बाइट्स। ये आपका पेज टेबल साइज है। द पेज टेबल ऑफ द सेगमेंट इज 2 पावर 15 16 माइनस एक्स बाइट्स। तो ये पेज टेबल शुड फिट इन एटमोस्ट 1 फ्रेम, एक फ्रेम से बढ़ के नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एक फ्रेम में फिट होना चाहिए। So that means, like previously we did many questions in crash course also, इसका मतलब ये है 2 power 16 minus x should fit in 1 frame. फ्रेम की साइज कितनी है? पेज साइज। फ्रेम साइज इज सेम एज पेज साइज, सो पेज साइज इज 2 power x, फ्रेम साइज इज 2 power x। ये हमारा इक्वेशन बन गया। 16 minus x is equal to x, मतलब 16 is equal to 2x, मतलब x is equal to 8, x is equal to 8। हमने पेज साइज माना था 2 power x बाइट्स। देखिए आप, पेज साइज वी अज्यूम 2 power x बाइट्स, तो मतलब पेज साइज आपका बन गया, पेज साइज इक्वल टू 2 power x 2 power 8 256 बाइट्स। तो दिस इज योर पेज साइज। देखिए आप ऑप्शंस में कहीं 256 है, हाँ है ऑप्शन ए, तो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आई वुड मार्क दिस एज ए स्टार प्रॉब्लम एंड यू कैन सर्टनली एक्सपेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आर्किटेक्चर। ये मॉडल के ऊपर आप अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। एक सेमाफोर के ऊपर क्वेश्चन ले लेंगे, कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, तो वी एक्सपेक्ट सिमिलर क्वेश्चंस इन एग्जाम। कंसीडर द फॉलोइंग थ्रेड्स, प्रोसेसेस बोलिए, थ्रेड्स बोलिए, नो प्रॉब्लम, एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सिंगल प्रोसेसर, यूनिप्रोसेसर, सिंक्रोनाइज्ड यूजिंग 3 बाइनरी सेमाफोर्स S1, S2 and S3. Threads can context switch anytime, fine. Preemption can happen anytime. What sequence will be printed if semaphores are initialized as S1 is 1, S2 is 0, S3 is 0? देखिए आप, where is S1? S1 is here. S2, S3, S2. Because S2 and S3 is 0, तो अगर आप थ्रेड 1 और थ्रेड 3 से भी स्टार्ट करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, प्रोसेस ब्लॉक हो जाएंगे, थ्रेड्स ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब कौन सा थ्रेड आपका स्टार्ट हो सकता है? थ्रेड T2 स्टार्ट हो सकता है। तो वेट ऑन S1 विल बी सक्सेसफुल, S2, S3 आर ब्लॉक, सो प्रिंट C। तो मतलब सबसे पहले आउटपुट आएगा C। फिर उसके बाद इन्हें वेकअप कर रहा है S3 को, S3 इज हियर T1, सो दिस इज गोइंग टू वेकअप थ्रेड 1, मतलब आउटपुट नेक्स्ट आएगा A। एंड दिस थ्रेड इज गोइंग टू से सिग्नल S2, S2 इज हियर, सो दैट मीन दिस थ्रेड इज गोइंग टू वेकअप T3, तो T3 नाउ विल प्रिंट B। तो मतलब आउटपुट ये सीक्वेंस में आएगा कैब CAB। फिर उसके बाद देखिए इट इज वेकिंग अप सिग्नल S1, क्योंकि ये सिग्नल S3 जाने के बाद ये ऐसा इट कैन गो एंड रिपीट द साइकिल। फिर वेट ऑन S1, इट विल ब्लॉक, सो सिग्नल S1 मींस T3 विल वेक अप T2। सो द सीक्वेंस इज T2 will wake up T1, T2 wakes up T1, and T1 wakes up T3, and T3 wakes up T2, like that it goes, T3 wakes up T2, तो साइकिल रिपीट होते रहेगी। तो T2 का आउटपुट क्या है देखिए आप C, और T1 का आउटपुट क्या है A, T3 का आउटपुट क्या है B, तो अब सीक्वेंस रिपीट होते जाएगी, CAB, so therefore the answer is C, very straightforward। ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स गेट में आए हैं पहले, शायद इसी मॉडल पर एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेंगे सेमाफोर के ऊपर ही, बिकॉज सेमाफोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं वेरिएशंस ले रहा हूं सेमाफोर के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट फॉर 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4। देयर आर 4 काउंटिंग सेमाफोर वेरिएबल्स विथ इनिशियल वैल्यूज X is 4, Y is 3, Z is 2, W is 1। देखिए ये काउंटिंग सेमाफोर्स है, W की वैल्यू 1 है और ये सेमाफोर्स की वैल्यू मोर देन 1 है। तो दिस इज माई स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस, ये स्ट्रक्चर है प्रोसेस का, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट। Process is performing down on X. Multiple processes can perform, up to 4 processes can perform successfully, up to 3 processes can perform successfully, up to 2 processes can perform successfully। परंतु लेकिन जब यहां पर अब आप आ जाएंगे, यहां पर P of W is 1, एक ही प्रोसेस सक्सेस होगा। यहां पर आने के बाद सिर्फ एक ही प्रोसेस सक्सेस होगा। फिर क्या होगा? क्रिटिकल सेक्शन है, फिर उसके बाद अप ऑपरेशन है, ठीक है। सो दैट मीन्स डज इट गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन और नॉट? हाँ बिल्कुल गारंटी करेगा, बिकॉज ओनली वन प्रोसेस विल बी सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग डाउन ऑन W, so only one process will enter critical section, remaining all will get blocked, so it guarantee mutual exclusion, it guarantee progress,
एंड इट गारंटी बाउंडेड वेटिंग, क्योंकि सेमाफोर से जब आप एक प्रोसेस को अलाउ करेंगे क्रिटिकल सेक्शन में, इट विल नेवर अलाउ अदर प्रोसेसेस, एंड अदर प्रोसेसेस हु आर आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन नॉट इंटरेस्टेड, दे विल नेवर प्रिवेंट द अदर प्रोसेस फ्रॉम एंटरिंग क्रिटिकल सेक्शन। तो इसलिए प्रोग्रेस भी गारंटी होगा, बाउंडेड वेटिंग भी गारंटी होगा। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई ऑप्शन है? यस, इट सैटिस्फाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सिंपल। ऐसे भी मॉडल पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद द इनिशियल वैल्यू ऑफ सेमाफोर, सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द इनिशियल वैल्यू ऑफ सेमाफोर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 क्वेश्चंस डिफरेंट मॉडल्स पर लिया हूं मैं। आप ये मॉडल्स पर प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यू कैन एक्सपेक्ट, वी आर होपिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस मॉडल व्हिच वी हैव वर्कड आउट, ठीक है ना। चलिए अब एल्गोरिथम्स पर ले लेंगे क्वेश्चंस कुछ। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस आप पॉज कीजिए वीडियो, और फिर यू कैन बेसिकली यू कैन मेक एन अटेम्प्ट टू वर्क आउट ऑन योर ओन फर्स्ट, एंड देन यू कैन check my answer, right? With my answer you can verify your approach, ठीक है। चलिए algorithms के ऊपर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए दिस क्वेश्चन इज ए रीजनिंग क्वेश्चन। मैंने क्रैश कोर्स में भी आपको बताया था कि ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस कई बार पिछले गेट में आए हैं, एंड पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। तो स्पैनिंग ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है एंड देयर प्रॉपर्टीज, दे आर वेरी वेरी वाइटल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन भी है कि जनरली स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। सो माय एडवाइस इज यू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद सच क्वेश्चंस एंड मेक ए करेक्ट चॉइस, ठीक है। और मेरी एडवाइस ये होगी कि आप ऐसे क्वेश्चंस एंड में सॉल्व कीजिए जिसमें ज्यादा रीजनिंग होगी। यू ट्राई टू वर्क आउट एट द एंड। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है बच्चों? इफ G हैज ए यूनिक मिनिमल स्पैनिंग ट्री देन ऑल इट्स एडजेस आर यूनिक। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो आपको ये डिसाइड करना है इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इफ G हैज ऑल यूनिक एडजेस देन इट ऑलवेज हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये दोनों स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंटिंग है, कॉम्प्लीमेंटिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंटिंग है। आपको पता है कि ग्राफ में अगर ऑल एडजेस आर यूनिक, ग्राफ के अगर ऑल एडजेस आर यूनिक, ये अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, देखिए आप अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, तो अगर ऑल एडजेस हैव यूनिक वेट, हर एज की कॉस्ट यूनिक अगर हो, तो आपको पता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी यूनिक होगी। ये तो प्रॉपर्टी पता है आपको। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है सेकंड। सो इफ G हैज ऑल यूनिक एडजेस, देखिए आप, G हैज ऑल यूनिक एडजेस देन इट ऑलवेज हैज ए यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो परफेक्टली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, हम इसका रिवर्स अगर कर दें, रिवर्स में क्या होगा? इफ G हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री, अगर एक ग्राफ की स्पैनिंग ट्री यूनिक हो, इफ G हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री देन ऑल इट्स एडजेस आर यूनिक। क्या ये जरूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ ये सेकंड स्टेटमेंट को रिवर्स कर देंगे, अगर G हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डज इट मीन दैट द एडजेस शुड हैव यूनिक एडजेस? क्या ये जरूरी है? आप सोचने लगेंगे कि हाँ सर ये भी जरूरी है, लेकिन ट्रिक यहां पर यही है कि ये जरूरी नहीं है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू नेसेसरली ऑलवेज, दिस इज फॉल्स। ये जरूरी नहीं है ऑलवेज, ये जरूरी नहीं है, ऑलवेज जरूरी नहीं है। समटाइम्स यस, लेकिन ऑलवेज नहीं। सर आप बोलोगे सर कैसे होगा ये? एग्जाम्पल बता दीजिए प्लीज। चलिए एग्जाम्पल ले लेंगे, सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए। एक सिंपल ग्राफ ले लीजिए, mark the vertices something like this, put some cost values something like this. चलिए, if you observe this graph has no distinct edges. There are two edges with same cost. देखिए आप, this edge B to C same cost, B to E same cost, same cost edges. लेकिन आप जब इसकी स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करोगे, स्पैनिंग ट्री बनाओगे, यहां पर हम स्पैनिंग ट्री बना लेते हैं, ठीक है। इज A, इज B, इज E, इज C, इज D। तो लीस्ट कॉस्ट एज इज 2। क्या दो लीस्ट कॉस्ट एज आएंगे स्पैनिंग ट्री में? हाँ आएंगे, दोनों भी आएंगे। ये साइकिल तो नहीं बनेगी दोनों से, दोनों भी आएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 नहीं आएगी, बिकॉज 3 इफ ऐड इट विल फॉर्म ए साइकिल। फिर 4 आएगा, हाँ 4 आएगा। फिर 5 भी आएगा, हाँ 5 भी आएगा, एंड दैट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। देखिए अब ये ग्राफ का, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है,
ये ग्राफ का सिर्फ एक ही स्पैनिंग ट्री है, इट डजंट हैव टू स्पैनिंग ट्रीज, इट डजंट हैव टू स्पैनिंग ट्रीज, एक ही स्पैनिंग ट्री, ठीक है ना. सो देयरफॉर दिस ग्राफ हैज यूनिक स्पैनिंग ट्री, but it does not have all edges with unique cost. So I am proving this statement is false. First statement is false. ठीक है. एग्जाम में आप इसी तरह करिए, एक सैंपल ग्राफ ले लीजिए और अप्लाई कीजिए, लेकिन वो सैंपल ग्राफ जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे वहां पर आप थोड़ा अपना दिमाग अप्लाई करना होगा, अपना माइंड अप्लाई करना होगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, ऐसे लेना पड़ेगा ग्राफ आपको. ठीक है, चलिए. So that means this is false, this is true. So number of correct statements is our NAT है, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट. तो मतलब एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. कौन सा करेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसका आंसर होगा 1 एज ए नैट, क्योंकि ही इज आस्किंग नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. अगर दोनों भी करेक्ट होते तो आंसर होता 2, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर होगा 1. चलिए, वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो जनरली हमने देखा कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं लूप कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर. तो एक सैंपल ले रहा हूं, मतलब मेरा यह है कि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए लूप कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर विथ रिगार्ड टू असिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. चलिए एक सिंपल लूप ले लेंगे यहां पर. फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज रिपीटिंग फॉर n टाइम्स. दिस इज वन स्टेटमेंट. वाइल j, दिस इज स्टेटमेंट 1, यू कैन से दिस स्टेटमेंट 2 वाइल स्टेटमेंट है. तो वाइल स्टेटमेंट आप देखिए, दिस इज लाइक ए लॉग कॉम्प्लेक्सिटी है ये, इज इट नॉट. फिर उसके बाद एक फॉर लूप है, यहां पर फॉर लूप है, ऐसे हम ब्रेकअप कर लेंगे, right, while j. So this is nothing but log n per iteration, and this is repeating for n times, this is repeating for n times. So ये जो for loop है, for loop का statement 1 total number of time that it repeats is n. तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ऐसे लिखूं, स्टेटमेंट 1 की टोटल टाइम बन जाएगी n, क्योंकि दी रिपीटिंग फॉर 1 टाइम एंड टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन मेड आर n. सो स्टेटमेंट 1 की टोटल टाइम हो गई n. स्टेटमेंट 2 की पर आइटरेशन log n है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इज रिपीटिंग फॉर n, सो देयरफॉर टोटल टाइम इट बिकम n log n. स्टेटमेंट 2 की. स्टेटमेंट 3 की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? दिस इज n एंड दिस इज n. पर आइटरेशन n, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटिंग इज n, सो मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस दैट इट मेक्स इज n स्क्वायर. तो ये हो गया आपका टोटल टाइम t ऑफ n. तो आपका फंक्शन बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n log n प्लस n. So if you take the order of n square, if you take omega, it is also omega of n square. So nothing wrong if you say theta of n square. तो हमें क्या पूछा जा रहा है देखेंगे. It is asking in terms of order, so therefore straightforward answer is order of n square. As simple as that. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम की तरफ मत देखिए आप, ये मॉडल की तरफ देखिए. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, that is what is the point. ठीक है, ओके. थर्ड क्वेश्चन is based on again functions. मैंने क्रैश कोर्स में भी और PYQ सीरीज में भी आपको कहा था कि फंक्शंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां सर आपको कई बार क्वेश्चन आए. मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज मेक योरसेल्फ वेल कंफर्टेबल विथ फंक्शंस, मीनिंग विच फंक्शन इज स्मॉल, विच फंक्शन इज लार्ज. देखिए आप यहां पर क्या पूछा जा रहा है. कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस, न्यूमेरिकल टाइप, अगेन नैट है. The correct decreasing order of the above function with respect to index value. Index value के हिसाब से आपको बताना है. Suppose two functions f1 and f2 and the index is 0 and 1. If f1 is greater than f2, you will write the answer as 0 1. चलिए एक मॉडल बता रहे हैं, उस मॉडल के हिसाब से आपको अरेंज करना है. ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये भी आप एक्सपोनेंशियल कैटेगरी में डाल सकते हो. ये है पॉलिनोमियल कैटेगरी, ये है पॉलिनोमियल कैटेगरी. दिस ऑल्सो इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपोनेंशियल. तो हमारे पास 3-4 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, 1 2 3 4. तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए आप, आई हैव 2 पावर n एंड n पावर log n. ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे. e पावर n और n फैक्टोरियल, ये दोनों बड़े फंक्शंस है. e पावर n और n फैक्टोरियल, इसमें बड़ा फंक्शन कौन सा है? देखिए आप, e की कांस्टेंट, e एज अ कांस्टेंट वैल्यू इज नथिंग बट 2.718. तो आप रफली से ले सकते हैं 2.7. तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा 2.7 पावर n, 2.7 पावर n. ठीक है ना. e पावर n is 2.7 पावर n. 2 पावर n मतलब is greater definitely. ठीक है. n पावर log n definitely will be less than this. And n factorial. अब now the question is n factorial greater or e power n greater? देखिए आप, I have e power n is 2.7 power n and the other is n factorial. So which is greater function among this? जब आपको समझ में ना आओ, you can take log, I said. So if you take log of this, it will become n into log of 2.7 and this will become a log of n factorial.
और आपको ऑलरेडी पता है, हमने क्रैश कोर्स में भी कहा, log of n factorial is nothing but it has with Stirling's approximation you can definitely prove it to be n log n. इसकी जो वैल्यू है it is order of n log n, theta of n log n. ठीक है? So if you observe these two values now, if you observe these two values, n into log is constant, constant into n, and this is n into log n. n into log n is definitely greater than constant into n. तो मतलब ये हुआ n factorial is greater than e power n. n factorial is greater than e power n. तो आपका फर्स्ट आपका फंक्शन आएगा n factorial, right? It is greater than, definitely it is greater than e power n, and that will be greater than. अब now how we have to decide among 2 power n and n power log n. वही कॉन्सेप्ट लीजिए आप, वही कॉन्सेप्ट लीजिए. I have 2 power n and other is n power log n. अगर ये आपको दिक्कत हो रही है कौन सा फंक्शन ग्रेटर है, सिंपली टेक लॉग. अगर आपकी यहाँ पे लॉग की वैल्यू ले लेंगे, log ले लेंगे, so it become log n into log 2 to base 2, and this will become log n into log n. ठीक है? log n into log n will be nothing but log n square. Asymptotically you definitely say that n is superior than log n because this is polynomial and this is logarithmic function. So n is greater than log n square, मतलब 2 power n is greater than n power log n. So मतलब 2 power n आएगा greater than n power log n आएगा. ये आपके 4 फंक्शंस हो गए हैं which are exponential. अब पॉलिनोमियल में आ जाइए. देखिए आप, ये पॉलिनोमियल है n रूट n. n रूट n का मतलब n पावर 3/2 मतलब 1.5. ठीक है? and this is n power 7/4. n power 7/4 is definitely greater than n power 1.5 because 7/4 की वैल्यू होगी 1.75. ठीक है? और ये है फंक्शन n. so naturally which is greater? n power 7/4 is greater. n power 7/4. फिर उसके बाद n रूट n आएगा, फिर उसके बाद आएगा n. 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शन है. 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शन. चलिए अब इसके इंडेक्सेस डाल लीजिए. n फैक्टोरियल इज 6, e पावर n इज 0, 2 पावर n इज 2, n पावर log n इज 3, n पावर 7/4 इज 4, and n root n is 1 and n is 5. तो ये बन गया आपका नंबर एज एन एट क्वेश्चन 602. तो इसका आंसर हो गया आपका 602 3415. ये है आपका आंसर. ठीक है? सो इस तरीके से. सो माई रिक्वेस्ट इज मेक यूर सेल्फ वेल कंफर्टेबल विथ फंक्शंस. ओके, ठीक है. चलिए कंसिडर. हाँ, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस पर एक क्वेश्चन है. काफी टाइम पहले क्वेश्चंस आए थे जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस फ्रॉम ग्रीडी मेथड. तो हम एक प्रॉब्लम ले लेंगे विथ अजम्पशन दैट मे बी दिस टाइम, बिकॉज लास्ट टाइम नैपसैक पर पूछा गया, स्पैनिंग ट्री पर पूछा गया, शॉर्टेस्ट पाथ पर पूछा गया, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस पर क्वेश्चन हो सकता है. तो कंसिडर द फॉलोइंग टास्क विद देयर प्रॉफिट्स एंड डेडलाइंस. व्हाट इज द नंबर ऑफ टास्क दैट कैनॉट, नंबर ऑफ द टास्क नंबर दैट कैनॉट बी शेड्यूल्ड इफ द आंसर इज 2, दैट मीन्स T2 कैनॉट बी शेड्यूल्ड. अगेन नैट. ठीक है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको एक अपना चार्ट बनाना होगा, शेड्यूलिंग चार्ट. ठीक है? लाइक गैंट चार्ट. और उस पर आपको बताना होगा ये आपका सिंगल सीपीयू है, द बर्स्ट टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस इज 1, राइट, एंड ऑल जॉब्स अराइवल टाइम इज 0 दैट वी अज्यूम. सो शेड्यूलिंग स्टार्ट्स एट 0. मैक्सिमम डेडलाइन देखिए बच्चों 5 है, तो आप 5 स्लॉट बना लोगे. इज इट नॉट? ऐसे ही हमने कहा था क्रैश कोर्स में भी सॉल्व करने के लिए 1 2 3 4 5 स्लॉट. तो दिस 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. 5 जॉब्स हो सकते हैं हमारे पास बिकॉज द मैक्सिमम डेडलाइन इज 5. चलिए क्या है स्ट्रैटेजी, ग्रीडी स्ट्रैटेजी. स्टार्ट विद द जॉब हैविंग हाईएस्ट प्रॉफिट. कौन सा जॉब है हाईएस्ट प्रॉफिट बच्चों? 20. इसकी मैक्सिमम डेडलाइन कितनी, इसकी डेडलाइन कितनी है 4. सो दैट मीन्स आई कैन नॉट शेड्यूल T1 बियॉन्ड दिस. T1 यहां पर शेड्यूल हो जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट डेडलाइन, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट 17 है, T3, राइट. इस डेडलाइन इज 3, मतलब T3 कैनॉट गेट शेड्यूल बियॉन्ड दिस. चलिए बहुत अच्छा. फिर उसके बाद है T4 15, इसकी डेडलाइन 3 है. हाँ ये भी आ सकता है 0 to 1, 2 इज फ्री, so I can schedule T4 here. Very good. फिर उसके बाद क्या होगा? T2 next highest profit. इसकी डेडलाइन 4 है, क्या आ जाएगा? हाँ, any slot from 0 to 4 अगर फ्री हो तो हम शेड्यूल कर सकते हैं. तो यहां पर आ जाएगा T2, यहां पर आ जाएगा T2. अब देखिए उसके बाद 2 जॉब बचे हुए हैं. T5 हाईएस्ट प्रॉफिट है नेक्स्ट 4, इसकी डेडलाइन 4 है, बट 0 to 4 ऑल स्लॉट्स आर फिल्ड अप. मतलब ये जॉब शेड्यूल नहीं हो सकता.
ये नहीं हो सकता। T6 के देख लेंगे, T6 इट्स प्रॉफिट इज 3 लेकिन डेडलाइन 5 है। क्या वी हैव ए स्लॉट 5 0 to 5 एनी स्लॉट फ्री? हाँ है। सो दिस T6 मतलब आउट ऑफ 6 जॉब 5 जॉब्स आर अकोमोडेटेबल। कौन सा जॉब अकोमोडेटेबल नहीं है? 5 नहीं है। तो एज ए न्यूमेरिकल आंसर टाइप ये आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि उन्होंने कहा था इफ T2 cannot be scheduled means you have to write 2, so therefore T5 cannot be scheduled, T5 cannot be scheduled, so answer is 5. Simple point. चलिए आगे बढ़ेंगे। Now this is a question based on Huffman coding। हाँ, Huffman coding पर भी काफी क्वेश्चंस आए हैं पिछले गेट एग्जाम में, तो आई एम टेकिंग ए मॉडल ऑन दिस। Huffman coding पर भी एक इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं। So what is he saying? Let us say the character P to U have the set of frequencies based on the table given below. Very good. Which of the following is or are based on Huffman code? Very good. MSQ question है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना, ऑप्शंस देखने से पहले ही आपको ट्री बनाना पड़ेगा। ऑप्टिमल, बाइनरी, एनकोड ट्री और डीकोड ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं। कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी हम ले लेंगे, यहां पर लिख लेंगे I have P, Q, R, S, T, U। उनकी फ्रीक्वेंसी एक बार यहां पर देख लेंगे, 10, 20, 24, 10, 20, 24, सॉरी 10, 20, 20, सॉरी 10, 20, 24, 11, 4, 18, 11, 4, 18, 11, 4, 18। वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए बच्चों, आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। कितने हैं बच्चों कैरेक्टर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए 6 कैरेक्टर्स को हम ले लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक ले लेंगे। वेरी गुड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा बच्चों? 4, 10, 11, 4, 10, 11, फिर उसके बाद 18, 20, 24। चलिए 4 का क्या है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब PQRST, ये T है। 10 है एक P, 11 है PQRS, ठीक है ना, एंड 18 है U, एंड 20 है PQ, एंड 24 है PQR। वेरी गुड। तो फिलॉसफी और एजेंडा यहां पर ये है कि यू आर गोइंग टू कंबाइन द 2 स्मॉलेस्ट। तो 2 स्मॉलेस्ट को हम मर्ज कर लेंगे और रूट की वैल्यू बन जाएगी 14। फिर उसके बाद 2 स्मॉलेस्ट, क्या होगा 2 स्मॉलेस्ट? 11 और 14, इज इट नॉट? तो हम 11 को लेफ्ट पे लाएंगे, हमेशा स्मॉलेस्ट लेफ्ट पे रहेगा, हमेशा स्मॉलेस्ट लेफ्ट पे रहेगा, मतलब 11 को हम यहां पर ला लेंगे, वो कैरेक्टर है S, ठीक है, ठीक है, ये हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? मर्ज कर लेंगे, राइट, मर्ज कर लेंगे। 11 एंड 14 दोनों स्मॉलेस्ट है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 25, ठीक है। तो अब देखिए आप 25 है और 18, 20 है 24। अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? 18, 20, 24, 25, मतलब 2 स्मॉलेस्ट है 18 और 20, 18 और 20 स्मॉलेस्ट है, ये दोनों को मर्ज किया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 38। तो अब हमारे पास क्या है बच्चों? 25, 38 एंड 24। देखिए आप 25, 38 एंड 24, 24 और 25 स्मॉलेस्ट है, तो 24 लेफ्ट पर आ जाएगा, 24 लेफ्ट पर आ जाएगा, ठीक है। तो 24 यहां पर आ जाएगा, 24 ये है R, तो 24 और 25 मर्ज होगा, 24 और 25 मर्ज होगा, ठीक है ना। तो दिस इज 49। तो अब हमारे पास बच गए हैं 49 और 38। देखिए आप, ये अब हम रिमूव कर लेंगे, ये हम रिमूव कर लेंगे, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर अब हम लास्ट में क्या मर्ज करेंगे बच्चों? अब हम मर्ज करेंगे 38 एंड 49। 38 लेफ्ट पे आना चाहिए, ठीक है, मैं यहां पर उतार लूंगा 38, और इसके 2 एलिमेंट्स है, सो दैट आई मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, 18 एंड 20, 18 और 20, ठीक है। दिस इज U, दिस Q। चलिए दोनों को मर्ज कर लेंगे, दोनों को मर्ज कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी कितनी हो जाएगी बच्चों? दिस इज 38 एंड 49, 17, 17 एंड 1, सो 87। ये हो गया आपका ट्री, इज इट नॉट? चेक के लिए 70, 78, 78 प्लस 9, 87। चलिए बराबर है 87।
ये अब रिमूव कर लेंगे हम। अब ये बेसिस पर हमें क्या करना होगा, हमें एलिमेंट्स के कोड डिटरमिन करने होंगे। तो व्हाट इज द कोड ऑफ P, व्हाट इज द कोड ऑफ Q, व्हाट इज द कोड ऑफ R, S, T, Q. So for that we have to assign elements, we have to assign binary codes from left to right. Left is 0, right is 1. Generally convention follow होता है, left edge is 0, right edge is 1, right? 0, 1. So here we will write the code of P. What is the code of P? P is here, code of P. So 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Very good. PQ. Q का क्या कोड है? 0, 1, 0, 1, right? PQ. फिर उसके बाद R का क्या कोड है? 1, 0. R का 1, 0 है, PQR हो गया। S का क्या कोड है? 1, 1, 0, 1, 1, 0, ठीक है ना? PQRS। T का क्या है? 1, 1, 0, T 1, 1, 0, T। U का क्या कोड है? U is 0, 0। That's all। ये आपका हो गया। तो मतलब this is 4 characters, this is 2 characters, these 2 characters, these 3 characters, this is 4 characters, 2 characters। तो जो भी हफमन कोड का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको ये ट्री बनाना है, केयरफुली बनाना है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, यू कैन वर्कआउट एनीथिंग। एवरेज नंबर ऑफ बिट्स निकालना हो निकालिए, या आपको टेक्स्ट दिया जाएगा, बाइनरी स्ट्रीम डिटरमिन करना हो कर सकते हैं आप, बाइनरी स्ट्रीम दिया जाएगा, टेक्स्ट कन्वर्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। फॉर कैरेक्टर सीक्वेंस TPTUQ, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कोड्स फिर से यहाँ पर लिख लूंगा, मैं कोड्स यहाँ पर फिर से लिख लूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। तो P का क्या है, फिर से एक बार मैं ले लूंगा, सॉरी, P का है 4 1s, 1 2 3 4, 4 1s। Q का क्या है देखिए, सॉरी, Q का है 0 1, 0 1। R आई थिंक इट इज 1 0। PQRS, S का क्या है, S का क्या है 1 1 0, 1 1 0 S। T का क्या है, सॉरी, T का क्या है 1 1 0, 1 1 0, 1 1 0। और U का क्या है, U का है 0 0। चलिए ये आ जाने के बाद आप एक एक करके चॉइस ले सकते हो और आंसर कर सकते हो। कुछ मैं करूंगा, बाकी का आप कर लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलो एक मैं करके बताऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं, फॉर कैरेक्टर सीक्वेंस TPTUQ, यहां पे लिख लेंगे TPTUQ। इज आस्किंग करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल कोड, ये होगा क्या? तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इनका कैरेक्टर कोड यहां बाइनरी स्ट्रीम यहां पे लिख लेंगे। व्हाट इज T 1 1 0, 1 1 0। What is P 1 1, 1 2 3 4? What is T 1 1 0? What is U? What is U? U is 0 0। What is Q? Q is 0 1। That's all। हेक्साडेसिमल कोड में आपको क्या करना होगा, आपको 4 कैरेक्टर्स 4 बाइनरी बिट्स लेना होगा और उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डिटरमिन करना होगा। तो देखेंगे क्या है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट इसका। ये देखिए आप, 1 1 0 is E, 4 1s is F, 1 1 0 is E, एंड 0 0 0 1 is 1। देखिए यही है ना हेक्साडेसिमल कोड, EF-E1। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये MSQ क्वेश्चन है, तो देयरफॉर दिस इज करेक्ट। उसी तरह आप वर्कआउट करोगे फॉर कैरेक्टर सीक्वेंस TPPQU करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल कोड, आप देखोगे, आप अप्लाई करके देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसी तरह फॉर बिट स्ट्रीम, ये एक बिट स्ट्रीम अगर है, अगर ये बिट स्ट्रीम से आप देखेंगे 1 0, देखिए 1 0 R है, फिर अगेन R है, इज इट नॉट, फिर 1 1 है, 1 1 कुछ है क्या, देखिए आप 1 1 नहीं है, तो 1 1 0 है, राइट, 1 1 0, 1 1 0 क्या है बच्चों, S है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 0 1, 0 1 क्या है, Q है, इसका 0 0, 0 0 इज U है, तो RRSQU बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। तो उसी तरह ये बिट स्ट्रीम का आप देखेंगे कैरेक्टर RRSUQ, ये भी सही होगा, ACD आपका आंसर है। So therefore, as an MSQ, you can work out like this. So बोलने का मतलब this is not, ये important, options important नहीं है. What is important is how to construct the tree and determine average number of bits. ये important है. उसके बेसिस पर क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, आप आंसर करना होगा. That's it. ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हफमैन कोडिंग का.
तो हॉफमैन कोडिंग पर भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस मेरा यही ऑब्जेक्टिव था डिस्कस करने का। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू अगेन। सो प्रिपेयर वेल, डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट अलाउ नेगेटिविटी टू पेनिट्रेट इन योर माइंड, कीप योर कूल। आपको लगता रहेगा कि मैं भूल रहा हूं, नहीं भूलेंगे आप मेरी बात याद रखिए। आप बिल्कुल काम एंड कंफर्टेबल तरीके से जाइए, एग्जाम में आपको हर चीज याद आ जाएगी एंड you can do well. So I wish you all the best for your future endeavors, including your GATE exam. Thank you very much.